اور ہم نے سوچا تھا، ہمارے کم از کم میری جنریشن نے، جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور اب میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے۔ آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے، کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے۔ جو کچھ کشمیریوں پر ظلم و استبداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے، اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ۔ جس طریقے سے ان کو پکڑ کے اغوا کر کے، یا جس طریقے سے بھی ابھی وہ اوریا نے بھی بات کی تھی، تو یہ ہے آج ہماری حالت۔ کس طریقے سے آپ واپس قائد اعظم کا وہ پاکستان، جس کو انہوں نے 20ویں صدی کے میراکل کے طریقے سے ہمیں دیا تھا، ایک آزاد خود مختار قومیت کا شعور پیدا کر کے علامہ اقبال نے جس پاکستان کو ہمارے لیے جس کا خواب دیکھا تھا، اس خواب کو اسی تصور کے ساتھ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور خوددار قومیت کے طور مملکت کے طور پر دیا تھا۔ لیکن ہم نے وہ پاکستان نہیں چھوڑا، کیونکہ ہم نے قائد اعظم کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا۔ قائد اعظم نے پہلے سال میں ہی 13 مہینوں کے اندر بتا دیا تھا کہ فوج کا کیا رول ہوگا، سیاستدانوں کا کیا رول ہوگا، بیوروکریسی کا کیا رول ہوگا، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دے دی تھی، مگر ہم میں سے کسی نے عمل نہیں۔ تو میں آج نہ کسی کی جسٹیفیکیشن دوں گا، اور اب وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں ڈیٹیلز میں جانے کے لیے، تو کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی، مگر میرے خیال میں بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا۔ تو بات میں بس یہی ختم کروں گا کہ اگر ہم نے اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کو واپس لانا ہے، ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہے، تو اس کے لیے صرف یہ ہے کہ پاکستان کو، قائد اعظم کے پاکستان کو واپس لے آئیے، جہاں پارلیمنٹ الیکٹڈ ممبروں پر مشتمل ہو، وہ چمچے چوروں ڈاکوؤں چوروں پر مشتمل نہ ہو، جہاں پر عدلیہ واقعی انصاف کرتی ہو، جہاں حکومت جس طرح ہماری حکومتیں آئی ہیں لوٹرز اور پلنڈرز کی، منی لانڈرز کی، کلرز کی، مرڈرز کی، اور جو ہیں بلیک میلرز کی، اس قسم کی حکومتیں نہ رہیں۔ ہمارے نہ تو کوئی عمل ہے، نہ کوئی ہمارا دفتر ہے، وہ سب ہم نے گروی رکھ دیے ہوئے ہیں۔ ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے، یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، اور پیسے دے کر وہ عوام پر نہیں خرچ ہوتے۔ جتنے مثلا 9/11 کے بعد پاکستان کو کم از کم $20 بلین ملے، کہاں گئے؟ آپ کو پاکستان میں امریکہ کے اس پیسے سے ایک یونیورسٹی بنی ہوئی نظر نہیں، کہیں سڑک نہیں بنی، کہیں کوئی برج نہیں بنا، کہیں اسکول نہیں بنے، کہیں ہسپتال نہیں بنے، کچھ نہیں بنا۔ اس کے برعکس چین جو آپ کے ملک کے لیے کرتا رہا ہے، اس نے کبھی کسی حکمران کی سپورٹ نہیں کی ہے۔ چین ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے کرتا آیا ہے۔ اس نے پہلے سالوں میں ہی پاکستان میں مشین ٹول فیکٹری بنا دی تھی، ٹیکسٹلا کا بہت بڑا کمپلیکس بنا دیا تھا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، اور پھر جتنے پل بنے، سڑکیں بنی، برجز بنے، یونیورسٹیاں بنی، بجلی گھر بنے، وہ چین نے بنائے ہیں۔ جن چیزوں کا فائدہ پاکستانی عوام کو جاتا تھا، چین کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ کون حکمران ہے، وہ چاہے مشرف ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا موجودہ حکمران ہو، وہ چین برابر پاکستان کی مدد کرتا رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے پیچھے لڑ کر ہم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا ہوا ہے۔ اور جس وقت مجھے یاد ہے 98 میں جب انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے، تو انڈیا کے ٹیسٹوں کے بعد امریکہ نے ہمیں کہا تھا خبردار انڈیا گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بنا، اور تم نے اگر ٹیسٹ کیے تو ہم سے برا کوئی نہیں۔ یہ دھمکی تو ابھی کچھ بھی نہیں تھی۔ ابھی تو جو باجوہ کے حوالے سے جو امریکہ نے ہمارے سفیر کو کہا تھا کہ جی ہمیں تمہارا پرائم منسٹر پسند نہیں ہے، اور اگر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جا رہا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہم کر دیں گے ٹھیک، اگر نہ کامیاب ہوا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل وہی دھمکی ہے جو ہمیں ملی تھی 98 میں، لیکن 98 میں ہم نے وہ کیا
जो पाकिस्तान के मुफाद। उस वक्त ये मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सिविल मिलिट्री हुक्मरान जो थे उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हम टेस्ट करें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ चंद लोग थे, चंद लोग जिनमें मैं भी शामिल था, हमने अपना उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के सीधा रखा था और उसको हमने ये लालच दे दिया था कि तुमने अगर ये फैसला कर दिया तुम्हारा नाम तारीख में रहेगा। और आज ये तस्लीम करना होगा कि जो 98 में हमने टेस्ट किए थे, इंडिया के टेस्टों के जवाब में नवाज शरीफ ने फैसला किया और नवाज शरीफ से हमने टेस्ट करवाए। तो मकसद मेरा कहने का है कि हमने पाकिस्तान को अमेरिका की धमकियों के बावजूद हमने वो काम किया जो अमेरिका नहीं चाहता था। दिसंबर 98 में अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर को वाशिंगटन बुलाया, दावत दी, यानी हमने टेस्ट कर दिए थे अमेरिका की ख्वाहिशात के खिलाफ। और वहाँ ऑफिशियल लेवल पर नहीं मगर प्राइवेटली क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा हंस के कि प्राइम मिनिस्टर अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द सेम जो तुमने किया। यानी ये देखिए कि जब आप अपने मुल्क के लिए कोई कदम उठाते हैं तो आपका दुश्मन भी, खा वो चाहे कि तुमने उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ किया है, वो भी तस्लीम करेगा कि आपने ठीक काम किया। तो अब हमें उस किस्म के हुक्मरानों की जरूरत है जो सिर्फ मुल्क के मफादात के लिए हुकूमत चलाएंगे। और 70 सालों में मैंने 76 साल हो गए मुझे पाकिस्तान की सारी जिंदगी का हिस्सा बने हुए। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब दो ये फैमिलीज हैं, एक मैं कहा करता हूँ शरीफों की फैमिली है, दूसरी बदमाशों की फैमिली, इन्होंने बाकायदा मुल्क को यरगमाल बना के रखा हुआ। और ये मुशर्रफ के बाद बाकायदा ये दोनों फैमिलीज हावी रहे। 90 की दिहाई में इन्होंने 3 साल की उठक बैठक चलाई थी। पहले 3 साल बेनज़ीर थी जो अमेरिका के 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने इंस्टॉल की थी। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आ गया, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, और फिर मुशर्रफ। नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ को निकाला तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला। लेकिन उसके बाद फिर जो फौज का किरदार रोल रहा वो बदकिस्मती से वो फिर वही रोल आ गया जो याहिया खां का रोल होता था 1970। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां अगर वापसी वक्त पर हो गई तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इट्स नो लॉन्गर ए स्टेट। आप चाहे कुछ भी कह दें, कौमी तराने बजा लें, झंडे उड़ा लीजिए, मगर जहां जिस मुल्क में कानून साजी ना हो, कानून ना हो, जहां फौज का काम ना करे, जहां पुलिस अपना काम ना करे, अदलिया इंसाफ के लिए है ही नहीं, कभी कोई काम अच्छा किया नहीं है, तो ये जब चीजें होंगी तो बदकिस्मती से यही। सिर्फ एतजाज साहब के 2 बातें रेफर किया था इन्होंने साइफर का। मेरा सारी जिंदगी साइफर से रहा है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान का क्राइसिस हो रहा था तो मेरे सफीर थे बंगाली और उनकी बेगम बंगाली, सारा एम्बेसी का अमला बंगाली था। आई वॉज दी ओनली वेस्ट पाकिस्तान, और बंगाली अमला सारा दिल से पाकिस्तानी समेत बेगम के। एक दिन बेगम ने मुझे कॉल किया कि शमशाद कैन यू कम टू द रेजिडेंस, अपने घर बुलाया। तो फिर गया हुआ था बाहर, तो उसने कहा मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ मेरा मियाँ हिंदुओं इंडिया के साथ मिल गया है। ये देखो ये खत हैं सारे जो इसको इंडियन सफीर के और मुफ्ती बाहिनी से आते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है बंगाली ईस्ट पाकिस्तानी औरत मगर पाकिस्तानी बीवी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं उस वक्त 5-6 साल मेरी नौकरी होगी उस वक्त, तो मैंने आके वो फिर इस्लामाबाद भिजवाया खुफिया तरीके से। तो साइफर जो है ना, ये इन चीज़ों के लिए होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते आए। तो मैंने साइफर से ही वो चीज़ भिजवाई खुफिया तौर पर। और ये और बात है कि जब उस वक्त उसका एक और साइफर का जवाब आ गया, वो सफीर ने देख लिया मेरे ने, तो मुझे कहता है कि तुम मेरे खिलाफ तुमने भेजी है रिपोर्ट वहाँ, तो मुझे चाबी दे दो साइफर की सारी। ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ साहब। तो मैंने कहा जी मैं तो चाबी नहीं, क्योंकि चाबी मेरे कंट्रोल में होती है तो मैं तो नहीं दूंगा। तो ये कह के मैंने फिर आके मैसेज भेजा फॉरेन ऑफिस के मेरे सफीर ने चाबी मांगी है, आप मुझे बता दें लेकिन साइफर पे मुझे जवाब न देना, क्योंकि साइफर पे वो देखेगा सफीर। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्लियर यानी टेलीग्राम से मुझे भिजवा देना, उसमें ये लिख देना कि हनीफ अगर भेजा तो उसका मतलब होगा मैं समझूंगा कि मैं दे दूं, और अगर बशीर होगा तो मैं मतलब समझूंगा कि ना दूं। तो बस हनीफ आ गया मुझे अगले दिन। तो मैं जब उसको गया चाबी देने तो कहता है आई डोंट नीड इट ना। तो उस वक्त तक मुझे पता चल गया था कि उसने फैसला कर लिया है डिफेक्ट कर। और उसके बाद फिर मैंने उसको एक बात कही थी, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था वो बंगाली था, हफीज नाम का। वो मेरे पास आया, मैं कमरे में बैठा,
तो हमेशा मेरे कमरे की चाबी बाहर लगी होती थी, तो उसने आके मुझे बताया, सर ये आप अपनी चाबी इसको अंदर रखा करें, बाहर ना रखें। ये मुझे सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल क्लास 5 का ग्रेड का अफसर मुलाजिम था, तो अच्छा। तो मैंने फिर ये किया कि सफ़ीर के कमरे में मैं जब गया तो निकलते वक्त मैंने सफ़ीर की चाबी, वो हमेशा अपनी चाबी अंदर रखता था, तो मैंने उसकी चाबी अंदर से निकाल के मैंने सफ़ीर को कहा कि सर ये चाबी ज़रा बाहर रखा करें ताकि खोलने में आसानी रहे। तो उसको मैंने मैसेज दे दिया कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता है। तो उसके बाद उसने फैसला कर लिया था कि मैंने जाना है, और मुझे फिर सेनेगल का जो प्रोटोकॉल का बंदा था उसने फोन किया कि सर तुम्हारा सर ये कर रहा है। तो साइफर जो होता है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं होती है कि कोई चीज़ हमने खुफिया पैगाम जब भिजवाना होता है तो वो साइफर से जाते हैं। इसी तरह साइफर एक दफ़ा एम्बेसडर ने मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन थी कि अब आइंदा बैंक का अकाउंट 2 आदमी साइन करेंगे, एक मैं और एक सफ़ीर, 2 बंदे, क्योंकि वरना सफ़ीर पे एतबार नहीं था, बंगाली डिफेक्ट कर रहे थे और पैसा लेके जा रहे थे। तो जब उसने सफ़ीर ने वो इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया तो मैंने फिर मिनिस्ट्री को साइफर तार भेजा कि उसने ये गलत भेजा है। तो उन्होंने साइफर से जब जवाब दिया तो फिर सफ़ीर को पता चल गया मैं साइफर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारे अपने आपस के जो मामलात होते हैं फॉरेन ऑफिस के और मिशंस के, वो ये होता है। अब ये जो इमरान की साइफर है वो तो एक सोशल चैट थी, एम्बेसडर और हमारा एम्बेसडर और डेविड ल्यू वो बैठ के उन्होंने फेयरवेल शायद हमारे सफ़ीर का किया, तो उसमें ड्रिंक श्रिंक चल रहे होते हैं, तो गपशप चलती है। उस गपशप में उसने असद मजीद को कहा कि वी डोंट लाइक योर प्राइम मिनिस्टर, और हमें पता है कि आपके यहाँ खिचड़ी पड़ रही है, एक साजिश हो रही है जिसमें उसको उतारा जाएगा। तो उसने असद मजीद ने, जिस तरह हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि कोई गुफ्तगू हो या कोई वाक़या भी ऐसा हो जो कि रिपोर्ट करना होता है तो वो साइफर से ही करते हैं। क्या अल्टरनेटिव होता है कि हम टेलेक्स भेज दें, वो दुनिया भर देखती, टेलीग्राम भेजें वो भी दुनिया देखती, लेटर भेजें उसमें देर लग जाती। तो उसने वो टेलीग्राम साइफर का भेजा जो इमरान ने पढ़ के, तो कोई वो साइफर का उस वक्त पुर्जा लेके इमरान ऐसे नहीं कर रहा था, वो एक कागज था सिर्फ खाली जो बता रहा था कि ये उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो पुर्जा जो साइफर का होता है वो सेक्रेटरी की पोजीशन में होता है। He is responsible for the safety and custody all cipher documents। जो सेक्रेटरी होता है, मैं बस जब फॉरेन सेक्रेटरी था तो मैं इंचार्ज होता था, कभी मैं किसी फॉरेन मिनिस्टर को या किसी प्राइम मिनिस्टर को, हाँ प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, तो ये एक इमरान को विक्टिमाइज करने के लिए इस साइफर का सारा किस्सा बना। दूसरी बात, तोशा खाना का मैं एक चीज़ हिस्ट्री से मैं पूरी अच्छी तरह से वाकिफ। ये तोहफों की जो रिवायत है ये बड़ी पुरानी है, मुगलों के ज़माने से है। 1605 में जब जेम्स I बादशाह होता था, उसने पहली दफा जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज वहाज भेजे, एक पूरा जहाज तोहफों से भरा हुआ जहांगीर को भेजा 1605। और जब वो आया तो जहांगीर इतना खुश हुआ तोहफों, उसने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे तुम्हारा मिल गया तोहफों से भरा जहाज, और मैंने अब आप लोगों को खुली इजाजत देती है, जहां मर्जी तुम लोग बिजनेस करो, हर जगह आपकी प्रोटेक्शन होगी और जिस जगह भी चाहोगे तुम। यानी जिस तरह होता है ना कि हमारे लोग दे देते हैं, जिस तरह ये नवाज शरीफ वगैरह ये करते थे शेखों को, जितने भी ये गल्फ के शहजादे थे इनको ये कह दिया था लाखों एकड़ जमीन इनको, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून में प्रोविजन नहीं है, इनको बाई नेम अलॉट की हुई थी। रहीम यार खां में, बहावलपुर में, खैरपुर में, कल्लात में वगैरह वगैरह। तो वो आते थे हर साल, शिकार खेलते थे और कुछ लोकल डेवलपमेंट कर देते हैं। रहीम यार खां का एयरपोर्ट बना दिया, फिर एक बलूचिस्तान में एयरपोर्ट था, शमसी उसका नाम था, वो एयरपोर्ट भी यूएई को दे दिया गया और यूएई वालों ने डेवलप किया। और 2001 9/11 जब हुआ तो अमरीकनों ने यूएई को कहा कि वी नीड दिस एयरपोर्ट, क्योंकि हमने पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान में लोगों पर मिलिट्री ऑपरेशन करनी है। तो यूएई वालों ने मुशर्रफ से बात करके मुशर्रफ की मर्जी से वो एयरपोर्ट अमेरिकनों को दे दिया। और फिर शमसी बेस से ड्रोन बाकायदा उड़ते थे और वो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे लोगों को मारते थे, हजारों पाकिस्तानी मारे गए उस एयरपोर्ट से। फिर इवेंचुअली फिर हमारे यहाँ पता चल गया तो फिर वो 2011 में हमने वो एयरपोर्ट वापस लिया और वो पता नहीं किसकी हुकूमत थी उस वक्त। तो ये बातें हैं जो ये जजों को और वकीलों को पता नहीं है। सच्ची बात पूछिए, केस लड़ने में ना, ये मैं आज इस वजह से बता रहा हूँ कि
जजों को पता होना चाहिए कि आपकी जो सलामती और सालमियत है वो आपके हुक्मरान हैं जो बेचते हैं तोहफों के बदले में। उस जमाने में शेख जायद के जहाज भर के रहीम यार खां आते थे, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, उस कंटेनर उतरते थे जो सीधे इनके घरों पर जाते, ट्रक भर के कंटेनर चले जाते, उसमें गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज, एयर कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या चीजें वो उनके घरों पर जाती थी। और इस तरह कभी तोशा खाना का रिकॉर्ड कुछ, ये तो 97 में मैं बता रहा हूँ कि मैं जब था फॉरेस्ट सेक्रेटरी तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि इसका कोई हिसाब होना चाहिए। तो हम दोनों प्राइम मिनिस्टर के पास गए, काजी वहीदा सिंह का लड़का मेरा बैचमेट, तो हमने इनके साथ बहस की और कहा कि कोई रूल होना चाहिए। तो रूल इसने फिर अपनी मर्जी से ऐसा बनाया कि 25% हम कीमत उसकी असेस करवा के दे देंगे तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर रूल तो बनाने में उनकी थी आज़ादी, तो कर लिया।